Okay. Live start agli. Okay. So I'll start. Namaste. Namaste to everyone. पहले अपना गुरुजी श्री ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर और पत्री माँ का अनंत कोटि प्रणाम। इधर उपस्थित हुए सभी मित्रों को मेरा आत्मवंदन। So welcome to our 15th day Antarkarna Shuddhi by Suvarna ma'am. Thank you, madam. Thank you, Suvarna ma'am. Thank you for your wonderful sessions. And thanks for social media, Vijay sir, and Antaryami Atma Saundaryam Ramani madam for supporting us in Zoom. Thank you so much. Now let us do meditation for half an hour. Thank you. We'll start meditation, ma'am. Yeah. So welcome, my dear friends. Let us start our meditation on this 15th day Antakarna Shuddhi class. Let us all sit in meditation just for half an hour. Today So is close your Paurnami. eyes. आराम से अपने प्लेस के पास आराम से बैठिए, स्थिर सुखासन पर बैठिए। Namaste, ma'am. नमस्ते सर। So sit in your places, complete relax. Set yourself, be comfort. अच्छा से आराम से बैठिए। कैसा बैठ गया, कितना सुख में बैठा है, उसका ऊपर 1 मिनट रहकर धीरे धीरे अपने मन का पास आना है। और किस स्थिति में है ये मन, थोड़ा शांति से ऑब्जर्व करो और वो मन को कंप्लीट रिलैक्सली, खुशी से अपने श्वासों के ऊपर रखिए। Always remember, please be happy, relax when you are doing meditation. हड़बड़ा से, दुख से, वो भी एक काम जैसा ध्यान करना नहीं, आराम होकर ध्यान करना सबसे जरूरी बात है। Complete, relax and happy. Let us all have the very happiest mood. Set your mood, set your circumstances, get relaxed. Close your eyes, start doing meditation. बिल्कुल विचार नहीं, बिल्कुल विचार नहीं। कितना खुशी से, कितना आनंद से हम ध्यान में बैठेगा, उतना एक्सपीरियंस आप ले सकता है। You can really enjoy the state of meditation when you are very relaxed. So my dear friends, let us concentrate on the breath, which is very normal, which is very slow, stable. Just observe the breath.
focus on the breath. हर समय याद रखना कि हम सही में कौन है। हर समय 100 बार 1000 बार याद करना, अहम ब्रह्मास्मि, I am that God, I am that being. Every time, completely be aware that we are gods. सभी वेदों में हमको ऐसा बोलता है कि अमृतस्य पुत्रः, you are the children of that eternal. All the Vedas are saying Amritasya Putraha. Why don't we understand that? In meditation, let us all understand that we are gods. Be clear with everything, internal and external. Be clear with everything. We are gods. Aham Brahmasmi. And everything is God. Sarvam Kalvidam Brahma. And that and I are one. Tattvamasi. Let us all understand this great and beautiful Vakyas from Veda. Aham Brahmasmi. ये चीज को समझने के लिए हम अंदर ट्रैवल करना पड़ेगा. That is meditation. Focus on the breath, my dear friends. अंदर आने जाने वाला दोनों श्वासों को ऑब्जर्व करो. एक सांस भी छूटना नहीं. हर एक श्वास हम ऑब्जर्व करते रहने से एक विचार भी नहीं आएगा. So be active, happy, and focus on the breath. No thoughts to our body and mind. No work with the body and no thoughts with the mind. No past, no future. Only at this moment, present, and that present with the breath as a witness.
Deep and deep silence, my dear friends. Time is the most important thing which never comes back. इस समय को इतना निष्काम कर्म करने के लिए हम दिया हुआ, इसको सही उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए इस समय पर दूसरा विचार नहीं, सब विचार को छोड़ दो, अपने शासन को ऊपर ध्यान रखिए। Let us go into the deep silent state. बिल्कुल अपने सांसों के साथ चलते रहो। एक समय के लिए भी, एक पल के लिए भी सांस को छोड़ना नहीं। सांस को छोड़ना मतलब सत्य का रास्ता को भूल जाना। We miss the way if we leave the breath. सांसों के साथ चलते रहो अपना मंजिल तक पहुंचने के लिए। No thoughts, my dear friends. There are no other ways, my dear friends, except meditation to come out of this samsara sagara. Only and only the thing is know yourself. Meditation is the only way to enter. Meditation is the only way to enter into Ahimsa Dharma.
whatever is going on, whatever wisdom we are getting, that is taking us to Ahimsa Tattva, and we are learning Ahimsa Dharma. बिल्कुल श्वासों का ऊपर ध्यान और deep and deep silence. Observe the breath, my dear friends. ध्यान के लिए अभ्यास जरूरी है, my dear friends. ध्यान स्थिति पहुंचने के लिए अभ्यास करना, समय ही साधना. कितना समय दे पाएगा उतना समय देना इस साधना को. समय ही साधना, कुछ नहीं, समय ही साधना. किसी एक चीज को समझ गया तो बाकी सब चीज समझ में आ जाएगा. वो समझना, एक चीज समझने के लिए हमको ध्यान का जरूरत है दोस्तों. If you know you are God, we will know everything in this universe. किसी एक चीज को पकड़ने से भी हम उधर तक पहुंचेगा. इसलिए कुछ भी विचार नहीं, साधना में ध्यान रखिए. बी कॉन्शियस, बी अवेयर, बी इन प्रेजेंट, फोकस ऑन द ब्रीथ.
डीप साइलेंस माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल विचार नहीं। Get ready like a warrior. किसी समय, कभी भी, every moment, everywhere, anytime, get ready. Being in present. खुशी से, आनंद से जीने के लिए हर एक समय सच्चिदानंद स्वरूप जैसा लेट अस गेट रेडी। इस ध्यान का समय अपने आप को सेवा करना, परोपकारम इदम शरीरम, सबको उपकार करने के लिए पहला खुद को करना पड़ेगा। थोड़ा समय हर दिन खुद के लिए। प्रज्ञानां ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, आनंदो ब्रह्म। इस ब्रह्म स्थिति को पाने के लिए, वो प्रज्ञान को पाने के लिए, आनंद स्थिति को पाने के लिए ध्यान सबसे जरूरी है। सांसों का ऊपर ध्यान दोस्तों। दस मिनट डीप एंड डीप साइलेंस मेडिटेशन।
Last 10 minutes, my dear friends. Understand the power of silence. Let us create our own reality through this great silence. Last 5 minutes. योगी भव अर्जुना, हम सब अभी योगी है, योगी बनने के लिए तैयार है। एक योगी हर स्थिति में समतत्व, he will be in the balanced state. Meditation is the key of yoga. एक मुमुक्षु को, एक साधक को meditation is the first step. Practicing meditation is the first and important step. समय देना है, समय ही साधना। Last 5 minutes, my dear friends.
Last 1 minute. Five, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए। एंड कंप्लीटली रिलैक्स होकर आराम से खुशी से अपना आंख खोलिए। So have a very nice day. Thank you, my dear friends. So welcome to this 15th day, अंतःकरण शुद्धि। So class शुरू होने के पहले every day I will ask you, how are you practicing? Every day check it. Is there any change in your practice? और ये प्रैक्टिस की वजह से क्या क्या बदलते रह रहे, वो हर समय नोटिस करिए। ये इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। आज कुछ टाइम दिया, सुना है, मतलब टाइम इज मनी, टाइम इज लाइफ, टाइम इज एवरीथिंग। इतना समय निकाल दिया मतलब उतना तो कुछ तो पाना है। इसके लिए कौन कर सकता है, मतलब आप ही कर सकते हैं। नोबडी कैन डू नथिंग। सो वो चेंजेस किधर से आएगा, मतलब आपका कोशिश कितना कोशिश करता है उतना चेंज मिलता है। सो हियर एवरीबडी कैन ओनली टीच यू और शो यू द वे। चलने वाला आप ही है, हर समय ये चीज याद रखिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज क्लास शुरू होने के पहले कल हम क्या क्या चर्चा किया इन यस्टरडेज क्लास, व्हाट आर द थिंग्स वी डिस्कस्ड, और एक बार जस्ट याद करने के बाद वी विल गो टू द एनीबॉडी। सबसे सुंदर लाइन, लेस लगेज एंड मोर कंफर्टेबल। लेस लगेज मोर कंफर्टेबल। सो ये पाथ में जाने के लिए आगे बहुत दूर जाना है ना, ये बहुत दूर जाने के लिए लेस लगेज मोर कंफर्टेबल। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन मैम। हाँ हाँ। एंड लेस लगेज मतलब आप मुझको गलत मत सोचो कि फैमिली नहीं चाहिए, ऐसा मत सोचो। सब चीज रखकर वो लगेज मत रखो, वो बंद। ओके, और सबको माफ करते हुए चलो। हाँ, एंड कल हम और एक बात के लिए डिस्कस किया, क्या है, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी, है ना। उसके बारे में बहुत अच्छे डिस्कस किया। कल का मेन टॉपिक भी वो है। सो नेक्स्ट सांगत्य के बारे में डिस्कस किया, किस सांगत्य के रहने से कैसा बदलाव आ जाएगा। वो राक्षसी कैसा बदल गया, अंगुली माला के बारे में एग्जाम्पल लिया, है ना। वाल्मीकि कैसा बदल गया, वो सांगत्य के साथ, हाउ मच इम्पोर्टेंट, किस सांगत्य के साथ रहता है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट सुभाषिता। हाँ, शब्द समय वापस नहीं आता। हाँ, नेक्स्ट क्या क्या चीज फिर वापस नहीं आएगा, उसके बारे में डिस्कस किया। समय, शब्दों, हमारा एक्शन, कुछ कर्म होने के बाद ये उम्र, ये चीज वापस नहीं आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से रहना है, उसी के बारे में भी डिस्कस किया। एंड दूसरा और एक लास्ट पॉइंट व्हाट वी डिस्कस्ड, वो पॉइंट बोलकर बंद किया कि पिछले जन्मों का
samskaram. विचार Yeah, हाँ. every life is continuity is next life. Yes, it's the most important thing. धीरे धीरे हम क्या करता है, ये सबके साथ साथ हाउ टू बिकम ए मास्टर के लिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में हम डिस्कस करते रह रहे. ओके, सो पिछले जन्मों का संस्कार इस जन्म में, मतलब उधर का लास्ट स्टेप विल बी द फर्स्ट स्टेप इन दिस लाइफ टाइम. देखो कितना वेरी वेरी वेरी, वो बात सुनने के बाद मैं पूरा देखते रह रहे जैसा मैं किधर तक आ गई जर्नी में. और मेरा ऐसा इच्छा है, कोई भी व्यक्ति मरने का समय, हाँ मेरा टास्क कंप्लीट, कभी भी आओ, आई एम रेडी. ओ यमधर्मराजा, आई एम रेडी, कभी भी आओ, माई टास्क इज कंप्लीटेड. इतना खुशी से कौन कंप्लीट करेगा, और वो फिर क्यों आएगा वापस नहीं आएगा, क्योंकि कंप्लीटेड. और कुछ भी बचा तो तब आएगा, क्योंकि उधर का लास्ट इज द फर्स्ट स्टेप. उधर कुछ भी नहीं है तो और आने का जरूरत क्यों. सो इसलिए हियर वशिष्ठा टोल्ड वेरी 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 गुड थिंग हियर. We will continue with this topic only, क्योंकि कल एक्चुअली मैं ज्यादा डिस्कस भी नहीं किया इस टॉपिक के बारे में. हमारा जन्मों का संस्कारों, बहुत जन्मों से बहुत संस्कार हमारा अंदर रहता है. एक चोर को वो संस्कार, वो बाय बर्थ वो एक अलग तरीका में रहता है, कुछ नहीं, उसके पास सब चीज रहता है, बट वो चोरी करने का मन रहता है. एक आदमी को छोटा समय से एक वैराग्य में रहता है. एक थोड़ा बच्चों को देखो, मुझको ना वो पहाड़ में जाकर रहना पसंद है. थोड़ा बच्चों को बाय बर्थ संगीत पसंद है. अभी भी मेरा ब्रदर का लड़की, वो बहुत 2 इयर्स है, वो जब से वो मंथ बेबी है, उसके पास संगीत का कोई गाना गाओ, वो चुपचाप रहकर ऐसा देखता रहता था. अभी भी एक गाना गाओ, वो अकेला बैठे तो कुछ ना गाना गाते रहेगा. हम सुनते हैं वाओ ये क्या गाना गा रही है, कुछ तो गाते हैं. मतलब शी इज इंटरेस्टेड विद दैट. ये संस्कार कोई दिया क्या, कोई गुरु से ट्रेनिंग दिया क्या, नहीं, वो पिछले जन्मों का संस्कार है. वो अच्छा हो बुरा हो सब चीज आ जाएगा संस्कारों में. और किस चीज ने डीपली अंदर तक पहुंच गया और किस चीज ने हम कंप्लीट नहीं किया, वो फिर वापस आते रहेगा, वो भी याद रखिए. इस संस्कारों में मैं पिछले जन्म में बहुत डर गया, वो डर को उस जन्म में कंप्लीट नहीं किया, उसको डर को आगे नहीं हुआ. अरे इधर कुछ भी डरने का बात नहीं, ये चीज मुझको क्लैरिटीली उस जन्म में नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ. तब क्या होता है, फिर नेक्स्ट जन्म के वो संस्कार हम पकड़ कर लाएगा, कंप्लीट करेगा. होमवर्क उधर वही नहीं, और क्या क्या रहता है हमारा. पिछले जन्म में मुझको ऐसा लगा है कि मैं अच्छा से हर समय गरम गरम कॉफी पीना, बट उस समय वेरी सिंपल इच्छा है, वेरी सिंपल इच्छा, बट वो गहराई में है. गरम गरम कॉफी सुबह सुबह उठकर ऐसा पीना है. बट उस समय मेरा फैमिली में कॉफी का बात नहीं है, वो बहुत गलत बात है. तो क्या हो जाएगा, वो मेरा गहराई में ऐसा ही वैसा ही मर गया. कॉफी पीना है, कॉफी पीना है, हो गया. उसको पकड़कर फिर इस जन्म में वो कॉफी पीने का आदत को मेरे साथ लाकर पीते रहूंगे कॉफी. ये किधर से आ गया, उस जन्म से, क्योंकि वो क्लियर नहीं हुआ उधर. सो बहुत ही अवेयरनेस रहना है. इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सर्किल से सेंटर होना है. बाहर आना मतलब क्या, सेंट्राइज्ड होना. लेट अस कम फ्रॉम द आउटर सर्किल टू इन सेंटर ऑफ द पॉइंट. इधर कुछ प्रेशर नहीं, दिस इज मोक्षा. इधर तक आने के लिए वी नीड लॉट ऑफ अवेयरनेस, क्लियरिंग ऑल
कोरिकास, क्लियरिंग ऑल नीड्स एंड वांट्स। एक तरफ क्लियर करते रहो, एक तरफ ज्यादा लाना मत, दो प्रकार का वर्कआउट करो। ये क्लियर करते रहेगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, फिर लिस्ट ऐसा ही रहेगा। मरने का समय क्या, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मुझको हिमालय जाने की इच्छा वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए ऋषि स्विल से है तो कंप्लीट करो, नहीं कर पाया तो एरेज इट। दो प्रकार है, कर सकता है तो कर सकता है। अभी मैं एवरेस्ट चढ़ना है तो मेरे से नहीं होगा, बट चढ़ना है ऐसा फील है तो क्या करना, आराम से बैठकर मन को बताना, अम्मा ये साध्य नहीं है, हमारा बस्ती का काम नहीं, मेरा जन्म में बहुत करना है। ये देखकर खुशी हो जाओ, कोई गया तो उसको देखकर मजा ले लो। प्राइम मिनिस्टर बनना है तो हो जाएगा क्या, शायद इतना गहराई में है तो हो सकता है, तो वो आई डोंट नो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर श्रद्धा एंड वर्कआउट ऑन इट। सो ये मुझको नहीं हो पाएगा तो मन को समझाना पड़ेगा और मन को क्लियर करना पड़ेगा, आराम से मन को बताना पड़ेगा, प्लीज ड्रॉप दिस वांट, एरेज इट। तो देयर आर टू वेज, क्या हो सकता है तो दे दो, क्या नहीं, ये नहीं होगा, ये जरूरत नहीं, इधर क्या करना है, मतलब उस बुद्धि को इस्तेमाल करना, हमारा ज्ञान को इस्तेमाल करना, तब वो एरेज हो जाएगा। एट लास्ट क्या चाहिए, मतलब हमारा टारगेट ये क्लियर होना चाहिए। ये चार्ट अंदर का चिट्टा रहेगा ना, एक तरफ पूर्व जन्म का है और एक तरफ इस जन्म का है। कितना कितना कब क्लियर करो, ये सब होमवर्क ज्यादा हो रही है, टास्क बढ़ते जा रही है ना, इसको क्लियर करना पड़ेगा। कैसा क्लियर करेगा, हम बाहर ढूंढते रहे तो क्लियर करेगा क्या। इसलिए वेयर दिस सॉल्यूशन इज, मतलब इट इज इन कारण शरीर, इट इज इन कारण शरीर। वो कारण शरीर में कैसा है, एक स्मॉल सीड्स जैसा बीज रूप में है, और उधर बीज है, इधर वृक्ष है, फल इधर है, फल रूट इज देयर। यदि मुझको क्लियर करना पड़ेगा, क्या करना है, ये एक बड़ा सा ट्री है, उसको काटते जाओ, फिर आ जाएगा। ऊपर से कितना भी काटो, ब्रांचेस काटो, फिर आएगा। हम सोच रहे हम क्लियर करते जा रही है, बट अनलेस एंड अंटिल यू डोंट गो टू द रीजन, यू कांट क्लियर इट। ठीक है मैडम, ये ऐसा काटने से ये नहीं होगा, मैं नीचे नीचे तक काटूंगी, काट दो, फिर आ जाएगा। क्या करना है, अंदर का रूट्स को पकड़ना पड़ेगा, पकड़कर खींचना पड़ेगा। इस संस्कार बहुत डीप लेवल में हमारा अंदर बहुत गहराई में रहता है, रूट्स। हर एक चीज को पकड़कर खींचना पड़ेगा। इसलिए ऐसा हर एक संस्कारों को पकड़ने का एक तरीका क्या है, मतलब विचार करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विचार, कौन करता है विचार, मतलब बुद्धि। बुद्धि विचार करने वाला है, और ये बुद्धि विचार करने के लिए उसको क्या चाहिए, मतलब विजडम, ज्ञान चाहिए बुद्धि को विचार करने के लिए। सही तरीका में विचार करना है, मतलब ज्ञान चाहिए, तब आएगा मोक्ष। दैट इज व्हाट मेक्स यू मोक्ष, मतलब हर एक संस्कार से बाहर आते रह रहे, we are going to the moksha, we are getting free, getting freedom from these all things. Friends, इसलिए गीता में कृष्ण भगवान ने बोला,
श्रद्धावान लभते मोक्षम। मोक्ष चाहिए तो पहला श्रद्धा रखो। किसके पास श्रद्धा है उसके पास मोक्ष आ जाएगा। श्रद्धा से पढ़े नहीं किया, किसी संगीत सीखना है, श्रद्धा नहीं है क्या? सिर्फ बच्चों को भेज रहे, उनके पास श्रद्धा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग संगीत सीख नहीं पाएगा। शायद हर रोज क्लास अटेंड करता है, बट वो क्या चीज पाना है वो नहीं पाएगा। इसलिए श्रद्धावान लभते मोक्षम। इफ यू वांट लिबरेशन, फ्रीडम, यू शुड बी लाइक दिस, दैट इज अडॉप्ट श्रद्धा। ये मोक्ष मतलब बहुत लोग क्या सोचता है कि बहुत बड़ा चीज है सोचता है। एक दिन जनक महाराज क्या किया, उनको भी मोक्ष के लिए, जनक महाराज इज ए ग्रेट गुरु एंड ए ग्रेट मुमुक्षु, हमारा जैसा है। वो तपता है, कौन कब उनका कान में एक अच्छा आत्मज्ञान का शब्द मिलता है, वो ज्ञान के लिए वो हर समय तड़पते रहेगा, तड़पते रहेगा। सो जनक महाराज को ये मोक्ष के बारे में चाहत अंदर से चाहिए। व्हाट इज दिस मोक्ष, हाउ टू अटेन दिस मोक्ष, रास्ता चाहिए। अष्टावक्र से पूछा, उनका गुरु द ग्रेट पर्सनालिटी अष्टावक्र, भगवत गीता जैसा, उपनिषद का जैसा, वशिष्ठ जी का जैसा, नारद माने नारद गीता भी है उनका जैसा, अष्टावक्र गीता कितना अच्छा रहता है। ये अष्टावक्र गीत में, ये अष्टावक्र गीत क्या है? जनक महाराज और अष्टावक्र का बीच का आत्मज्ञान का, ये गुरु शिष्य का। क्या कुछ आवाज आ रही है क्या? ओके, सो ये दोनों का बीच का आत्मज्ञान का क्वेश्चन एंड आंसर्स, सॉल्यूशंस, ये सब बीच में चलते रहेगा, वो अष्टावक्र गीत में है। सो जनक महाराज पूछता है अष्टावक्र से, स्वामी हाउ डू आई गेट मोक्षा? आई वांट दैट वे, प्लीज गिव मी दैट वे, हाउ? तो यस आई विल, तो थोड़ा बता दो सर, मुझको सीखना है, मैं क्या क्या तैयार रहूं, मैं कैसा तैयार रहूं? जनक महाराज बहुत हैप्पी हो गया, बहुत एंशियस हो गया, कब कब सीखना है, ऐसा है। तब अष्टावक्र जी ने बता दिया कि राजा आप इतना ये नहीं, आप आइए, मैं दिखा दूंगी डायरेक्ट। बोलने का क्या, आई विल शो यू हाउ यू विल गेट मोक्ष, नो ओनली यू विल गेट मोक्ष इफ यू अंडरस्टैंड। आपको समझ गया था, इमीडिएट विल गेट, आप आइए। ऐसा बाहर लेकर गया और बोला है एक घोड़ा को लाओ। सो राजा है, ऐसा बोलने से तुरंत घोड़ा सामने रहता है। एक अच्छे से घोड़ा मिल गया उधर, चढ़ो, ऊपर चढ़ो। सो अभी ये दोनों क्या कर रहे, मोक्षा को लाने के लिए जा रही है। सो अष्टावक्र ने, जनक महाराज बहुत खुशी हो गई, अभी मुझको घोड़ा में लेकर जाएगा मोक्ष के पास। एक पैर रख दिया घोड़ा के एक तरफ, और दूसरा पैर रखने के समय अष्टावक्र ने बोला रुको रुको रुको, ऐसा ही रुको। स्वामी जी जस्ट 1 मिनट में मैं पैर रखकर चलूंगे, चलो। नहीं नहीं, आपको मोक्ष मिलना है ना, मोक्ष इतना आसान है कि ये पैर उस तरफ रखने के लिए दूसरा पैर कितना समय रखेगा? 1 सेकंड भी नहीं सर। इधर से दूसरा पैर दूसरा तरफ रखने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, एक रखने के बाद। ये पैर दूसरा तरफ जाने के लिए कितना समय लगेगा, उतना समय में आपको मोक्ष आ जाएगा। मोक्ष इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग, वेरी इजी, within second you will get moksha. How? If you had that shraddha and if you are ready, तब आ जाएगा इतना easily. We all are eager for
लिबरेशन। सबको शांति चाहिए, पीस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, अंदर का बात को पकड़ना चाहिए, अंदर का चीज को देखना चाहिए, उससे उधर तक पहुंचना चाहिए, सबको उतना इच्छा है। बट कितना लोग रेडी है, क्योंकि ये पाने के लिए ये छोड़ना पड़ेगा। कितना लोग रेडी है फ्रेंड्स? अपने आप हम सब क्या कर रहे हैं, अपना ऊपर एक मास्क डालकर बैठ रहे। एक मास्क, मास्क क्या है? ऊपर से चाहिए, अंदर से छोड़ता नहीं। चाहिए तो छोड़ना पड़ेगा, इधर का रूल वो है। इसलिए अष्टावक्र ने बहुत अच्छे से बोल दिया, आपके पास श्रद्धा, इफ यू आर रेडी यू विल गेट मोक्षा इमीडिएटली। जस्ट ये पैर इस तरफ घोड़ा कर रखने का कितना समय लगता है, उतना समय में मोक्ष आ जाएगा। बट इफ यू आर रेडी, व्हाट रेडी? जनक महाराज ने बोला क्या रेडी करना, मतलब टू लीव एवरीथिंग, दैट इज व्हाट रेडी। हम बच्चों का विषय भी छोड़ नहीं पाएगा, अपने बच्चों को छोटा छोटा विषय भी छोड़ नहीं पाएगा मन में, तब कैसा आएगा? वी कांट लीव, कल का बात भी छोड़ नहीं पा रही है। बच्चों का विषय छोड़ो, सामने दिखता है इसलिए शायद वी आर गेटिंग इमोशंस। कल सामने नहीं दिख रहे, परसों एक झगड़ा हुआ वो सामने नहीं दिख रहे ना, हमारा जीवन में बहुत कुछ हुआ वो सामने नहीं दिख रहे, उसको भी छोड़ नहीं पा रही है, तब कैसा आएगा? आंसर इज विथ themselves। कैसा छोड़ना, मतलब खुद को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए विचार करो बोल रहे सब लोग। अभी से कितना गुरु लोग के बारे में डिस्कस किया, सब लोग एक ही बात बोल रहे, गो इनटू योरसेल्फ एंड विचार करो किधर से है ये प्रॉब्लम, फ्रॉम वेयर इट इज। बिकॉज वो बाहर दुनिया में नहीं है ना, बाहर दुनिया में नहीं है तो आसान से पकड़ कर ला सकता है। కోరి, ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. కోరి కుందేటి కొమ్ము సాధించవచ్చు, ఇసుకన తైలంబు తీయవచ్చు, మూర్ఖుని మనసు రంజింపలేము. मतलब देखो, एक कुछ किधर से साउंड आ रही है बाबा? हाँ ओके, हाँ आप ढूंढे तो शायद नहीं है ऐसा चीज को भी हम ला सकता है, बट मूर्खता हमारा अंदर है तो इसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसका मीनिंग है, मतलब ढूंढते रहो। एक रैबिट का, ऐसा रैबिट को हॉर्न्स रहता है क्या? नहीं रहता, बट शायद ढूंढे तो मिल पाएगा। तेल को मिट्टी में डाल दो, फेंक दो, शायद मिट्टी से फिर तेल निकाल सकता है, शायद। ये नहीं हो पाएगा तो भी शायद कोशिश किया तो हो सकता है, बट किसी इंसान का अंदर मूर्खता है तो उसका मन को कोई खुशी नहीं दे पाएगा। दैट इज द मीनिंग। मूर्खता मतलब अज्ञानता, उसको सब चीज चाहिए, किसी का बात सुनता नहीं, सब चीज चाहिए, बदलने के लिए तैयार नहीं रहता। मूर्खता का अलावा क्या है वो? जब चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ छोड़ना पड़ेगा। उनका सुख चाहिए, मेरे घर में सब लोग खुशी में रहना है तो नॉनवेज छोड़ो, किसी जानवर को मत मारो, उनका जीवन में उंगली मत रखो बोलने से वो सुनता नहीं। हिंसा नहीं छोड़े तो हमसा कैसा पकड़ पाएगा? हिंसा छोड़ो, हमसा पकड़ो। रामकृष्ण परमहंसा, हमसा मतलब क्या है? वो हमसा का स्थान योगी लोग को
इस वानप्रस्थाश्रम मतलब देखो मैं बताऊंगी 4 टाइप्स ऑफ ये है। एक गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य, टीनेजर्स, उसके बाद गृहस्थाश्रम, उसके बाद वानप्रस्थानम मतलब सब लोग जंगल में जाकर उधर ये करना। इस वानप्रस्थाश्रम के बाद और एक चीज है संन्यास, दैट इज बिगेस्ट। बहुत लोग सन्यासी बन गए। ब्रह्मचार्य अलग है, ब्रह्म तत्व अलग है, सन्यासी अलग है। बहुत लोग क्या करते हैं, ध्यान में आ गए मतलब ये सन्यासी बन गया सोचता है, ये अलग है। ब्रह्मज्ञानी बनना अलग है, ब्रह्मचर्य अलग है। ब्रह्मचर्य मतलब एक ब्रह्मज्ञानी बनना, उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज करेगा वो बात है। संन्यास आश्रम मतलब लिविंग एवरीथिंग, all the worldly pleasures and going to another state of living, वो अलग है। किस व्यक्ति ने हिंसा छोड़ दिया उसको किस स्थिति मिलता है मालूम? संसार में रहकर बिना सन्यासी स्थिति लेने का जरूरत नहीं। ये संन्यास शास्त्र में 4 फेजेस है। इस 4th फेज इज हंसा, परमहंस स्थिति। दिस 3rd स्टेट हमसा, 4th इज परमहंसा, रामकृष्ण परमहंसा इसलिए बोलता है। इसका पहला 3rd स्टेट इज हमसा। किस व्यक्ति ने ये छोड़ दिया वो व्यक्ति ये सब पार कर ये स्थिति तक पहुंच पाएगा। गोइंग टू दैट स्टेट, हिंसा छोड़ने से इतना मिलता है हमको इधर रहकर। वो लोग संन्यास शास्त्र में सब छोड़कर बहुत बहुत कुछ अपने आप को करते, बहुत निष्ठा में बहुत चीजों फॉलो करते, वो लोग उस स्थिति पर पहुंच रहे हैं। अब किस व्यक्ति ने हिंसा छोड़ दिया वो डायरेक्ट ही विल गेट दैट स्टेट। देखो बट छोड़ने का मन नहीं रहता, क्यों? श्रद्धा एंड गेट रेडी टू लीव। अष्टावक्र ने जनक महाराज से ये पूछता है कि क्या स्वामी आप रेडी है क्या छोड़ने के लिए? मैं एक कहानी बताऊंगी, ब्यूटीफुल स्टोरी। सुबह मुझको बहुत ही याद आ गया, मैं सोचा आज क्या बताना है, तब ये स्टोरी याद आ गया। पांडुरंग स्वामी मालूम है ना, पंडरीपुर पांडुरंग स्वामी। पंडरीपुर मालूम है ना, शिरडी के पास पंडरीपुर, उधर पांडुरंग स्वामी उनका भक्त है तुकाराम। भक्त तुकाराम बोलता है, उनका भक्त पांडुरंग स्वामी का। उनका हर एक काम में रंगा 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 बोलता है। कुछ भी काम करते रहोगे रंगा, कुछ भी दान दे दो वो देखता है कि सब रंगा का स्वरूप है, वो पांडुरंग का स्वरूप है। पूरा घर में कितना आ गए वो दान देते रहेगा। उनका वाइफ क्या, वाइफ है ना, बच्चों में रहता है, सब रहता है। इसलिए एक्चुअली देखो, लेडी इज ए वेरी ग्रेट डिवाइन स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बाय बर्थ। जन्म से ही वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। स्त्री तो भी ज्यादा माया में गिरने वाला भी स्त्री है, ज्यादा माया में गिरेगा। मेरा बच्चों, मेरा घर, मेरा पति, मेरा फैमिली, मेरा पेरेंट्स, मेरा मेरा सब पार करेगा। बच्चों को कोई गुस्सा किया, मेरा बच्चों को गुस्सा किया, गुस्सा क्यों करेगा दूसरों? वो बदलने के लिए। आपको बच्चे सुधरना है तो मेरा बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ लाया, मेरा बच्चे को थोड़ा रखो। मन बोलता है अंदर से, अरे बाबू को ना ये पसंद है, जैसे चलो चलो अंदर रखो, अंदर रखो। मिलेगा है तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा, सबको दो। इसलिए देने का जगह अन्नपूर्णेश्वरी जैसे रहना। बट हम क्या रहता है, पूर्ण नहीं हुआ, हम कंप्लीट नहीं हुआ, अन्नपूर्णेश्वरी जैसे कब रहो। ओके
स्त्री lady is a great person, great pillar of the total world. बट वो लेडी को उनका स्थिति मालूम नहीं. सबसे क्या करो, उनका अस्तित्व, उनका स्थिति, असली तत्व क्या है वो कभी सोचे ही नहीं. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण पूजिता. वो शक्ति का रूप कौन लिया? देवी देवताओं में स्त्री लिया, माता लिया शक्ति का रूप. मतलब ऑल द लेडीज आर शक्ति का रूप. और वो क्या है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण पूजिता. सर्वभूतेषु, इधर क्या चीज है इस दुनिया में? इधर हर एक चीज आप ही है. ये तत्व को पकड़ गया तो एक स्त्री कैसा रहता है? बट इसको मालूम नहीं. इसको क्या है? ये मेरा का चीज सामने आ जाएगा, ये बड़ा सा कर्टन, उधर से वो देखते रहेगा मेरा 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 बोलकर. समझ गए? तो इस मास्क में कैसा मिलता है? इधर क्या है? ये तुकाराम सब चीज सबको बांट देता है, सबको. उनका बच्चों भी तुकाराम को देखकर बहुत खुशी होता है. ऐसा चलते रह रहे. उनका वाइफ क्या? ये क्या है? सब चीज दे रहे. कल हम क्या खाएगा, कल हम कैसे जिएगा, ये कल का बात भी रहता है, परसों का बात भी रहता है. इसका दिमाग सब चीज रहता है. इसको कैसा मोक्ष आएगा? हो गया. एक दिन तुकाराम को स्वप्न में पांडुरंग स्वामी दिखकर बोलता है, तुकाराम कल वो पुष्पक विमान आ जाएगा, आप आइए डायरेक्ट मेरे पास. आई एम सेंडिंग टू यू टुमारो. वो इमीडिएटली उठकर ना उनको वाइफ को बोलता है, कल भगवान ने मुझको ये भेज रहे, मुझको उनके पास ले जाने के लिए. मैं ना आपको भी ले जाऊंगा, आप भी तैयार रहो जल्दी. वो भी सुबह उठा है, ये बहुत उत्सुक है, चलो चलो वो आ जाएगा, जाना है. पहला क्या दिमाग में, ये कैसे बोल रहे हैं, सही है क्या? डाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डाउट रहता है, वो भी हस्बैंड बोलने से और वाइफ बोलने से ज्यादा डाउट रहता है. दुनिया में सबको बिलीव करता है, सुनता है, घर में नहीं सुनता. क्या करो, एक कर्म है. It is naturally life partners are coming through to dissolve the karma. इसलिए वो लोग ऐसा ही रहता है मोस्टली. ओके. ये एक अपोजिट मिलकर एक होकर इनके पास है तो इनके पास नहीं. यस नो में बहुत कुछ सीखता है ना. दो पत्थर पकड़कर ऐसा ऐसा अपोजिट रगड़ने से फायर आ जाएगा. ऐसा इधर भी रगड़ना चलता है कि वो आग, ज्ञान. आग मतलब कभी भी सोचो वो ज्ञान है. आग मतलब कुछ फायर. फायर मतलब द एलिमेंट फायर इंडिकेट्स विजडम. ये वाइफ एंड हस्बैंड का रगड़ में क्या होता है? लाइफ का रगड़ में बहुत कुछ ज्ञान सीखता है हम. ओके. ऐसा ही हम घर का बात क्यों नहीं सुनता? ये रगड़ के लिए. देखो मेरा लाइफ में देखो, मैं कभी कैबेज ही नहीं खाता था. पहला शादी हो गया, खाना शुरू किया. कॉम्प्रोमाइज, हाउ टू एक्सेप्ट द थिंग्स. ऐसा बहुत चीज सिर्फ एक एग्जांपल बता रही है. बदल गया ना? कैसा बदल गया? पहले एक पर्सन को खाना बनाना मुझको मुश्किल होता था, हस्बैंड को. जैसा बच्चों में आ गया 2-3, अभी 100 लोग आ गया तो भी खाना बनाना आ गया, सीख गया ना. ऐसा ये रगड़ क्या करेगा? हमको सिखाता है. इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी ये क्या है मेरा जीवन सोचना मत. दिस इज फॉर द पर्पस. एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर द ग्रेट पर्पस. अभी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा. सो ये तुकाराम का वाइफ भी क्या किया? अरे रे थोड़ा रुको ना, ये जाने के लिए तैयार है, टाइम हो रही है, थोड़ा ना मैं थोड़ा दूध उबाल कर आ जाऊंगा. ओके. तुकाराम वेट किया.
उसके बाद अरे रे गाय को घास देने हैं, क्या ये नहीं है तो गाय को घास कोई दूसरा नहीं देगा क्या? उधर मोक्ष का भगवान के पास से एक चीज आकर वो ले जाने के लिए तैयार है, तो भी इधर देखो इनका। उसके बाद अरे रे बाहर साफ नहीं किया, थोड़ा पानी डालकर रंगोली डालकर आऊंगा, सुबह है ना, वो हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर बाहर कदम जा रही है, अरे रे रे रुको रुको, मैं भगवान के पास में दिया नहीं रखा, उधर भगवान ही वेट कर रहे और इधर दिया नहीं रखा बोलकर फिर अंदर गया, फिर दौड़कर बाहर आ गया। फिर थोड़ा देर जाने का समय तुकाराम जाते रह रहे, फिर उनको क्या याद आ गया, अरे पूरा घर में अभी अभी खेती का धान्य आ गया, मैं घर को ना ताला नहीं डाला, फिर पीछे गया, फिर पीछे गया ताला डालने के लिए। तब तक तुकाराम गया, वो पुष्पक विमान में चढ़कर चला गया। ये ताला लगा कर देखा तो सब लोग हर्षध्वन कर रहे खुशी से, और ये देखते रह रहे कितना चांस मिस हुआ। वर्ल्डली एक्टिविटीज हम ना खुद पकड़ता है, उधर मोक्ष रेडी है तो भी इधर छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहता। एक के बाद एक ऐड आता ही रहेगा। अरे सब चीज है, मतलब बच्चों का पढ़ाई हो गया, शादी का समय है, शादी कैसा करना, कितना खर्च करना, कितना धूमधाम करना, और कल का शादी के लिए अब पैसा कैसे इकट्ठा करो, फिर गिर गया। पैसा इकट्ठा करने के लिए एक काम करने से नहीं हो रहे, दूसरा भी काम करना है। इसलिए सिंपल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ टू अंडरस्टैंड दिस ग्रेट स्टेट। लाइफ को सिंपल किया तो, इजी किया तो कितना आराम से हमको कितना टाइम मिलता है। नहीं तो ये पैसा का चक्कर में और दूसरे चक्कर में, स्टेटस का चक्कर में, नेम फेम, ये सब में हम ही बंदे हो रहे। इसलिए अष्टावक्र जनक महाराज से पूछा, आप छोड़ने के लिए तैयार है क्या? क्योंकि देखो तुकाराम का वाइफ के लिए भी मोक्षा रेडी है। 1 मिनट वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं पाई। सो माय डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी एक तरफ, इसको अंदर घुसना है, इसको समझना है, तो दूसरा तरफ छोड़ना भी पड़ेगा। ये वासनों को छोड़ना, अननेसेसरी थिंग्स को छोड़ना, अननेसेसरी बॉन्डेजेस को छोड़ना। मैं सिर्फ आपको एक रियल एग्जांपल दे रही है। आपका फोन उठाकर देखते रहो कितना कॉन्टेक्ट्स है, उसमें से सही कॉन्टेक्ट्स एक साल में कितना लोग को आप 3 बार बात किया, 4 बार बात किया, उसको रखो एटलीस्ट 2 टाइम्स, बाकी सबको निकालो, आपका फोन आधा खाली हो जाएगा। अननेसेसरी कॉन्टेक्ट्स फोन में है, और जीवन में कितना कॉन्टेक्ट्स और कितना चीज रखता है, समझ गए? सो आज मैं एक पॉइंट को ज्यादा सा स्ट्रेस, ज्यादा सा पकड़ कर एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीका में बता रही है, क्योंकि ये चीज हम सब का अंदर है। जगह इतना ही है, भरा दिया बहुत चीजों से, इसको खाली नहीं किया तो नया चीज कैसा आता है? जगह किधर है? समझ गए? मोस्टली लेडीज विल बी इन दिस। इसलिए मैं और एक बार बता रहे, चेक मोर। स्त्री के लिए आसान है मोक्ष, पुरुष के लिए भी आसान है। कोई किसी को भी, बच्चों को भी देखो, नचिकेत को यमधर्मराज ने बोला आपको अच्छा से 3 वरदान देता हूं, बट ये क्या, ये सब नहीं चाहिए मुझको, मोक्ष के बारे में, व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बता दो।
विल आई बी हैप्पी, ये सब मिलने से मैं खुशी रहता हूँ? नहीं, ये भी चल जाएगा। नहीं, मुझको क्या परमानेंट है उसी के बारे में बता दो। बच्चों का भाई ये आसान है। उत्तान पादु, वो क्या किया, जैसा पिता का प्यार नहीं मिला, तब उनका माँ ने बोला सबका पिता वो विष्णु है, भगवान है। तब वो क्या किया, जंगल में गए भगवान को ढूंढने के लिए, ध्यान किया, नारायण 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 ऐसा बोलते रह रहे हैं। इतना छोटा बच्चा इतना दिल से तप से नारायण नारायण बोलते, नारायण आ गया और बोला आपको क्या चाहिए, आपको राज्य चाहिए? बोला आप ही मिले तो मुझको राज्य क्यों, आपको आपका पापा का प्यार चाहिए, दे दो, अभी चेंज करूंगे आप सब कुछ है। नहीं नहीं, वो पापा का प्यार भी नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपके साथ रहना है मैं। इतना बच्चा को ज्ञान है सही समय क्या डिसीजन लेना है, हमारा अंदर क्यों नहीं? समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? फ्रेंड्स, वी आर अनेबल टू लीव सो मेनी थिंग्स इन अवर माइंड। हर एक चीज को अंदर जाओ, अंदर जाकर विचार करो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, विचार करो। ये विचार कब करना है? अभी से शुरू करो। समय बाद में नहीं रहेगा, समय का भरोसा मत रखो, क्योंकि एवरी टाइम टाइम इज ए इल्यूजन। टाइम बहुत माया के साथ रहता है। अब सोच रहे मैं बहुत हेल्दी हूं, आई एम हैविंग सो मच ऑफ टाइम, किसका साथ कब टाइम खत्म हो जाएगा किसी को नहीं मालूम। इसलिए कल किया तो आज ही करो, अभी करो। क्यों? कल में प्रलय हो जाएगा। प्रलय क्या है? आवर एंड पॉइंट। कब मिलेगा किसी को मालूम नहीं। सो एवरी डे चेकआउट, एम आई एम रेडी, मैं रेडी हूं और रेडी नहीं है, थोड़ा चेकआउट करिए। ओके फ्रेंड्स, एक ज्ञानी क्या करेगा? देखो, एक फार्मर है, एक खेती बाड़ी करने वाला, पूरा उनका खेत आ गया। ये धान्य को क्या करता है, जब हवा चलता है उसी समय ऐसा ऐसा करता है हवा में। ऑटोमेटिकली क्या होता है, किसमें वो बीज ठीक से नहीं है, वो हवा के साथ दूर जाएगा। क्या चीज अच्छा है वो उधर ही गिर जाएगा। वो हवा जब है तब समय तुरंत वो काम करता है। ऐसा ही जब हमारे पास समय है, सब चीज है, वी आर स्ट्रांग, हर एक चीज है, तभी सभी काम कंप्लीट करना पड़ेगा। यू शुड अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस लिबरेशन। इसके लिए क्या करना है, अभी से करना है। जब हवा है तो वो क्यों किया, उनको मालूम है जब हवा नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा। वैसा ही हम भी एवरी टाइम गेट रेडी फॉर द स्टेप। सो दूसरा, सुबह एक चीज याद आ गया, हम क्या करता है, मतलब हमारा इमेच्योरिटी, अज्ञानता कैसा रहेगा। सुबह ऐसा साईं बाबा का फोटो, ऐसा मैं मेरा रूम में एक बड़ा सा फोटो रहता है बाबा जी, बाबा का, साईं बाबा का। ऐसा देखने के समय मुझको एक इंटरेक्शन हुआ। सब लोग बाबा के पास जाता है, मुझको वो दे दो, ये दे दो, अच्छा घर चाहिए, अच्छा मेरा परिवार को सुख रहना है, मेरा हर एक चीज पूरा करना है। एक्चुअली उस समय बाबा क्या करता था, हंसता था अंदर से अंदर। ये देखो गरीबी के पास आकर सब मांग रहे, या और कितना गरीब में है, मेरे पास कपड़ा नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं भिक्षाटन करता हूँ। मुझको देखकर भी उनके पास समझ में नहीं आ रही है कि इंसान के पास कुछ जरूरत नहीं तो भी सब रह सकता है, और मेरे पास नहीं है तो मैं क्या दे दूं उनको। लोग कितना मूर्खता में रहता है।
बाबा के पास क्या सीखना है वो भूल गया। मांगते रह रहे। और वो एक्चुअली क्या है, ये साधु संत योगी लोग ना बहुत कंपैशन रहता है वो लोग को। वो लोग क्या करता है, ये सत्य मार्ग में लोग को लाने के लिए, ठीक है ये मांग दिया ना, ठीक है, छोटा बच्चों में जैसा मांगता है ना, मम्मी मुझको चॉकलेट दो, हाँ चॉकलेट दे दी तो वो पढ़ाई करेगा, बेटा चॉकलेट ले लो पढ़ाई करो। ऐसा ही ये योगी लोग क्या करता है, साधु संत लोग, सिद्ध पुरुष, वो लोग क्या करता है, अवधूता, ये लोग को क्या बोलता है, अवधूता। अवधूता मतलब कौन है, किस व्यक्ति ने ये वर्ल्डली एक्टिविटी से डिटैच होकर एकत्व में, वो लोग को बाकी चीजों से कोई जरूरत नहीं, दे विल बी इन दैट स्टेट। ये लोग क्या करता है, वो लोग देख लिया ये उन्नति असली स्थिति क्या है, वो असली आनंद किधर मिलता है, इसलिए कोई भी उसके पास आ गया, हाँ मैं बोल दिया मेरा परिवार को ये करो, मुझको थोड़ा बहुत गरीब में स्थिति में हूँ, थोड़ा पैसा दो, बाबा मैं आपको 2 रुपया दान कर रहे, मुझको 1000 रुपया दो, ये सब बोलता है, वो हंसता है। बट वो क्या करता है, उनका शक्ति से सुषमा तो बंद करो, ज्यादा ये हो गया उनका शक्ति से वो लोग हमको देने के लिए ही बहुत प्रयास करता है। क्यों, शायद ये देने से ये लोग इसका ये तृप्ति हो गया, शायद दूसरा सत्य का नेक्स्ट डे दे विल कैच दिस सत्य का मार्ग, शायद पकड़ेगा, ऐसा सोच कर वो देते रहता है। हम बहुत इंटेलिजेंट है, हम मांगते ही लेते ही रहता है। इसलिए मलयाला स्वामी विल से देयर आर 2 थिंग्स, 2 कैरेक्टर्स। गॉड का कैरेक्टर है गिव फॉरगिव, देते रहेगा और क्षमा करते रहेगा, फॉरगिवनेस इज अ गॉडली कैरेक्टर, गिविंग एंड फॉरगिविंग। और इंसान का कैरेक्टर क्या है, गेट फॉरगेट, वो लेते रहेगा और भूल जाते रहेगा। अरे बाबा ये एक चीज हो गया तो बस मैं कल से, फिर कल नॉर्मल, भूल गया ना, लिया भूल गया। से मलयालम में ये 2 कैरेक्टर्स को थोड़ा बदल गया तो गॉड विल बी एवरी टाइम इन हिज कैरेक्टर। इंसान का कैरेक्टर थोड़ा बदल गया तो सब चीज सेट हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल बात है हमको। सो माय डियर फ्रेंड्स, छोड़ने के लिए तैयार रहना। ओके, क्या छोड़ने के लिए, मतलब हमारा जन्म जन्मों का वासनाओं को, हमारा किस चीज ने हम पकड़कर रोते रह रहे ना, वो चीज को, वो मुझको गुस्सा किया, वो ठीक से बात नहीं किया, मतलब मोह में है, वो बहुत गुस्सा कर रहे मुझको, अननेसेसरी बात, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस, अननेसेसरी जजमेंट्स। सो ये सब छोड़ दिया तो दूसरा चीज हमको आ सकता है। ये छोड़ने का बात सीखना है आज हम इस क्लास में। छोड़ने का आवश्यकता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, जरूर मालूम होना है। आज मेरा टारगेट वही है, इस क्लास का टारगेट। हम कैसा जी रहे बताओगे। और एक एग्जांपल, एक पर्सन है, 2 गांव बीच में एक स्मॉल लेक, उस तरफ से इस तरफ बड़ा ये लेक को पार किया छोटा सा नाव से, छोटा सा। ये लोग इस तरफ आकर क्या किया, ये जेंट्स लोग पूरा सुबह से रात तक पूरा काम किया, और क्या क्या सब्जी है, ये है वो है, पूरा रात तक दूसरा गांव में सेल किया, पूरा बेच दिया। बेचने के बाद बहुत रात हो गया, रात बेचने के बाद क्या किया,
ये 10 लोग इस पैसा को कैसा बांटना, और थोड़ा लोग पी लिया उस पैसा से, बाकी लोग ये पैसा किधर किधर कितना शेयर करना, आप इतना ही इन्वेस्ट किया, आपको आधा % ये, वो क्या किया, जैसा नाव में आ गया, फिर रात हो गई ना, बहुत रात, फिर बैठ कर एक तो चलाते चलाते गाना गाते, आपको इतना देना है, थोड़ा लोग झगड़ा कर रहे, थोड़ा लोग पी कर नशा में है, वो चलते रह रहे चलते रह रहे चलते रह रहे। सुबह हो गया तो वो लोग, ये नदी इस तरफ से इस तरफ पार करने कितना समय लगता है, सुबह हो गए वो गया ही नहीं दूसरा तरफ। तो ये क्या है, हम चलते रह रहे और सुबह हो गया, हम गया नहीं है, तो थोड़ा कॉन्शियस आ गया, ध्यान आ गया, देखे तो वो नाव का रस्सी वो बड़ा सा वृक्ष को बांध लिया ना, वो कोली ही नहीं, और नाव किधर चल रहे, इधर से उधर उधर से इधर, वो लोग रात पूरा इधर उधर चलते रह रहे, तब भूल गया रस्सी खोलना। हमारे जैसा क्या क्या खोलकर छोड़ना वो भूल गया, और बहुत चलते रह ले ये लाइफ का नाव में, फिर देखे तो किधर है, उधर ही है। क्यों, why I am saying this much, क्योंकि at one point our यमा मास्टर will come, टाइम हो गया बॉस, चलो, और वो ले जाने के पहले और एक क्वेश्चन पूछो, क्योंकि वो सेट करना है ना, किधर सेट करना है हमको ले जाकर किधर ना किधर रखना पड़ेगा ना, रखने के लिए एक जगह चाहिए, किस जगह में हम सेट होगा वो देखने के लिए वो यमा मास्टर विल से, वेयर आर यू, व्हाट यू डिड, क्या किया आपने, इतना अच्छा से बहुत टाइम स्पेंड किया, मजा लिया, क्या किया, मतलब नो क्वेश्चन। आपका आत्मज्ञान आ गया, नो सर। आप मन को सेट किया, नो सर। फैमिली को सेट किया, फैमिली कौन चाहिए, आपके लिए क्या किया, कुछ नहीं किया सर। आपको आप आत्मा है मालूम हो गया, ये चीज सुना हूं, बट कोशिश करने के लिए सोचा, तब तक आप आ गया, वही बात बोलता है, अरे मैं सोचा कल करने के लिए, आप बीच में आ गया, इसलिए मैं नहीं कर पा रही है। अब बोलता है अरे हर एक चीज के लिए ब्लैंक आंसर, सही आंसर्स नहीं, तब बोलता है आपका ना किधर भी जगह नहीं, फिर इधर ही आकर उधर रहने के लिए, किसी एक आंसर को पार किया तो एक जगह में रखता है, 2 पार किया तो और ऊपर, 3 पार किया तो और ऊपर। भूलोक, मनोलोक, सुवरलोक, भुवरलोक, ऐसा वो बहुत निर्वाणमय लोक, इतना लोकों में किधर सेट करना हमको। वो बोलता है ओके बेटा, आपका आंसर सब रॉन्ग है, मतलब कुछ भी कोशिश नहीं किया, एक काम करो, फिर इधर ही जगह है, उधर जगह नहीं है आपको, फिर जन्म लेकर इधर ही आओ बोलकर ले जाकर फिर छोड़ता है इधर, चलो अभी आओ, फिर आपका जगह ऑन द अर्थ, फिर जननम, फिर मरणम, फिर जननम मरणम। व्हाट इज दिस, देयर इज नो एंड, somewhere we should end this all points na, where to end, मतलब लीव, छोड़ते रहो छोड़ते रहो छोड़ते रहो, अपना नहीं है छोड़ो। बच्चों का ऐसा बड़ा होगा, उनका लिखित उनका रहता है, दे आर क्रिएटिंग देयर ओन लाइफ, डोंट वरी, कल क्या है, गॉड इज देयर एवरीवेयर, कितना तक जीना है उतना तक खाना तो मिलता है, इस पैसा को क्या करना, बाद में दूसरों को देना पड़ेगा, यू कैन टेक, रूल्स विल नॉट एक्सेप्ट टू टेक फ्रॉम हियर। लास्ट क्लास में सुधीर सर ने बोला अलेक्जेंडर का स्टोरी, यू कांट टेक एनी 1 रुपी, ये नेम एंड फेम भी नहीं आएगा। बहुत अच्छा कहानी याद आ गई। एक राजा है, उनके वो क्या किया, उनके पास
7 wives, seven wives शादी किया। सबसे ज्यादा प्यार उनका फर्स्ट वाइफ, बहुत प्यार है। ऐसा ऐसा 7th वाइफ के पास गया तो बिल्कुल उनको याद भी नहीं वो उनको शादी किया और नहीं, ऐसा देखता था, मतलब भूल गया ऐसा मानकर जो, बट सब लोग वही राज्य में आराम से जी रही है, सब चीज है। एक दिन यमधर्मराज ने स्वप्न में आकर बोल दिया कि आपको 3 दिन में मृत्यु आने वाला है। ओके, मैं आकर 3 दिन में आपको ले जाऊंगी, रेडी रहो। इमीडिएटली राजा को सब चीज याद आ गया, सब पत्नियों में याद आ गया, बट पहला प्यार किसका ऊपर है? पहला वाइफ का ऊपर। सो पहला वाइफ के पास जाकर बोला आप मेरे साथ आइए ना, आई कांट लीव यू, मैं आपको छोड़ नहीं पाएगा, आप मेरे पास आइए। तब फर्स्ट वाइफ ने बोला अरे इतना दिनों से एक दिन भी बिना छोड़कर मेरा दिमाग खा लिया, अब जाओ प्लीज बॉस, यू प्लीज गो, है ना। ज्यादा पकड़ लिया तो उनको भी इच्छा रहता है, ये बोला अब तक इतना दिन में एक दिन भी मुझको छोड़ा नहीं, अब छोड़ दो, अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरे वाइफ के पास बोला है हाँ आप मुझको अच्छा से देखभाल किया, बट ना मैं थोड़ा दिन साथ रहता हूँ, उसके बाद नहीं रहूंगी। फिर तीसरा के पास गया, वो बोला है हाँ हाँ आप बहुत अच्छे से, आप मुझको क्या क्या चाहिए सब दिया, बट मैं ना कितना जरूरत है उतना तक देखता हूँ, उसके बाद मैं नहीं कर पाएगा। राजा को अब दुख आ रही है, किस किस व्यक्ति को ज्यादा कुछ देते रह रहे, सब लोग से आंसर इज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू हिम। दूसरा पत्नी के पास गया, वो बोला है चलो आपके साथ ना थोड़ा दूर आता हूँ, इसके अलावा मेरा काम नहीं है। और दूसरा पत्नी के पास गया, वो बोला है मैं ना साथ रहता हूँ, बट ना मुझको ज्यादा काउंट मत करो, मैं कब जाऊंगी मुझको मालूम भी नहीं, मैं ऐसा जाऊंगी। हो गया। और लास्ट वाइफ के पास गया कि पत्नी के बारे में वो उसको याद भी नहीं है। वो पत्नी के पास गया और वो पत्नी ने बोला आप और मैं एक ही हूं, आप छोड़ दिया तो भी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आप छोड़ दिया तो भी अब तक आप मुझको कभी याद भी नहीं किया, मैं हर दिन आपको याद कर रही, इसलिए बाद में भी नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको कभी भी आपके लिए ही चिंता कर रहे, आपके लिए ही सोचते रह रहे। हो गया, तो मृत्यु आ गया। ये पत्नियों कौन है मालूम? फर्स्ट वाइफ इज अवर बॉडी, जीवन भर इसको प्यार है, सब कुछ दिया दिया दिया, ये इमीडिएटली गायब, जैसा मृत्यु आ गया। ये क्या बोलता है बहुत सालों से मुझको देखा है, अब छोड़ दो, हो गया काम, एक फल भी आपके साथ नहीं रहूंगी। हो गया ना। सेकंड वाइफ, सेकंड क्या है? सेकंड वाइफ हमारा खुद का लाइफ पार्टनर, ठीक है साथ है बट नहीं आ पाएगा, है ना, वो साथी है, लाइफ में हमारे साथ आएगा ऐसा प्रमाण भी लिया, शादी का समय जीवन भर सब मिलकर लाइफ में पार्टनर बना दिया, बट क्या करूं तो भी आ नहीं पाएगा, वो भी बता दिया। तीसरे जगह गया, कौन है? बच्चों, पेरेंट्स, खुद का खून का ये रिश्ता। वो लोग क्या किया, अरे बाबा आप मर गया तो 10 दिन 11 दिन बच्चा पूरा पिंड प्रदान सब करता है ना, याद रखता है, उसके बाद हमारा काम नहीं,
हम और याद कितना दिन रोएगा बताओ। मेरा पापा मर गया, मेरा मम्मी मर गया, मेरा दादी मर गया, कितना दिन रोएगा। उसके बाद आंख से पानी भी नहीं आएगा, तब काना भूख। इसलिए काल, ये काल चक्र में हर एक व्यक्ति को भूल जाना जरूरी है। एक नींद आ गया, कल भूख लगता है, खाना क्या बनाना, क्या खाना है, फिर शुरू, भूल जाना ही पड़ेगा। 11 दिन के बाद चलो पापा बहुत कुछ किया हमको, थोड़ा लोग किया बोलकर, थोड़ा लोग नहीं किया बोलकर, वो भी छोड़ना ही पड़ेगा। और 10 कदम कौन आता है दूर? रिश्तेदार, फ्रेंड्स। जैसा ये जाने के समय थोड़ा दूर तक आएगा, स्मशान बरियल ग्राउंड तक आएगा, उसके बाद छोड़ेगा, उधर भी छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा दिन रहकर अचानक गायब हो जाएगा। क्या है? हमारा नाम। मैं उतना हूं, मैं इतना हूं, बहुत इसके लिए ही है ना, पूरा जीवन भर काम किया। नेम एंड फेम, मुझको सब चीज, सब लोग अच्छा सोचना है, सब लोग के पास मेरा नाम अच्छा रहना है। ये नाम खराब हो गया तो ज्यादा दुखता है इंसान। पैसा गया कोई कुछ नहीं, ओके एडजस्ट हो जाएगा, बट कोई भी नाम खराब किया ना, मुझको अब आइडेंटिटी, ये नाम खराब हो गए तो ज्यादा दुखता है। ये क्यों है नहीं मालूम। पैदा हुआ कुछ नाम नहीं, पेरेंट्स ने नाम दिया, अब दिया हुआ नाम के लिए जीवन भर तड़पता है। मेरा नाम खराब हो गया, मेरा नाम अच्छा हुआ, अच्छा हुआ तो खराब, गंदा हो गया तो। अंदर खराब नहीं हुआ ना, वो चीज देखते नहीं। नाम किधर है? नाम हवा में किधर है? इसलिए नरेंद्र, नरेंद्र मतलब उनका पेरेंट्स रख दिया, वो क्या किया? विवेकानंद जैसा बदल दिया। ये योगी कल्चर में जैसा वो संसार छोड़कर इस स्पिरिचुअलिटी, संन्यास शास्त्र में गया, वो नाम बदलता है, नाम चेंज करता है, क्योंकि नाम के साथ बहुत रहता है, नाम के साथ बहुत कीचड़ रहता है। इसको छोड़ना है तो नाम बदलना है, इसलिए उधर नाम चेंज करता है लोग, उनका स्थिति के ऊपर से, उनका प्रैक्टिस के हिसाब से दूसरा नया नाम देता है, क्योंकि ये पूरा छोड़ दो, इससे बहुत चीज है। समझ गए? क्योंकि मरने के बाद भी और थोड़ा दिन रहकर, थोड़ा दिन के बाद सब भूल जाएगा। हम बहुत आशावादी है, इसलिए कुछ दान देकर मेरा नाम वो मंदिर के ऊपर लिखवा दो। एक इसमें नाम को काट कर रखेगा, मैं 1 लाख रुपया दिया, रहना है जीवन भर। मैं वाराणसी गया लास्ट टाइम रिसेंटली, उधर आंध्रा आश्रम है, उधर गया तो कब साल का लोग है, उनका फोटोस नीचे नाम। वो लोग अब जिंदा है और नहीं, मुझको नहीं मालूम कितना सालों का पहले का ईयर्स है। वो नाम चाहिए। देखो ये बहुत टाइम लगता है भूल जाने के लिए, बिना भूलने के लिए ये नाम रखता है बाहर ऐसा जगह में। ये नाम इसलिए बोल दिए नेम एंड फेम, मैं थोड़ा दिन के बाद ना अचानक गायब होता, डोंट वरी। और एट लास्ट वाइफ कौन है? आप भूल गए तो भी अब तक मैं भूली नहीं, दैट इज आत्मा। आत्मा। हम भूल गया, हमको नहीं मालूम, मुझको भी नहीं मालूम। 22 ईयर्स आने तक, जब तक मैं ध्यान में एंटर नहीं हुआ, तब तक मुझको मालूम नहीं है मेरा अंदर एक आत्मा है। देखो हालत कैसा है। एक मास्टर ने मेरे ऊपर उंगली रखकर ऐसा बोला, यू आर नॉट सुवर्ण, यू आर ए सोल, ऐसा क्लास में जनरली बोल दिया। और जब वो मेरा लकी, आई एम सो लकी, उनका उंगली मेरा तरफ आ गया, नहीं तो शायद ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसा दिखाने के समय वो आत्मा के बारे में बता, यू आर नॉट सुवर्ण, यू आर आत्मा। ऐसा बोलने की वजह से, ऐसा मेरा ऊपर आइडेंटिटी रखने की वजह से मेरा अंदर ये अहंकार को एक बार डाउट आ गया कि असली में कौन हूं। अब तक मैं सोच रही मैं सुवर्ण हूं, ये आदमी आकर मुझको सुवर्ण नहीं है बोल रहे, आत्मा। ये आत्मा कौन है? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई गॉट दैट डे।
इसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस किया वो आत्मा के बारे में पकड़ने के लिए। पकड़ लिया, समझ गया। बट देखो वो आत्मा क्या बोला, आप छोड़ दिया तो भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब तक आप मुझको पहचानता नहीं तब तक आते रहेगा, जन्म जन्म लेकर आपको इधर लाकर किसी दूसरा शरीर में हो तभी भी नहीं छोड़ूंगे पकड़कर। हु आर यू, आई एम सोल। वो कंप्लीटली क्लैरिटी आने तक मैं आपको पकड़ूंगी। एक बार आ गया तो इधर आने का जरूरत नहीं जाएगा। दैट इज मोक्ष। सो तब अभी राजा क्या किया तो अच्छा रहता है? एक्चुअली राजा ऐसा प्यार किया, ऐसा थोड़ा ऐसा प्यार किया तो सब चीज शायद सेट हो जाएगा। पहला सोल, आत्मधर्म को निभाना। फर्स्ट एवरी पर्सन शुड गो टू आत्मधर्म एवरी डे। इसलिए हमारा पुराने लोग एंसेस्टर्स ने बताता है, सोने के पहले ऐसा आपका ये देखो, इधर लक्ष्मी सरस्वती पार्वती रहता है, ये देखकर सो जाओ बोलता है। क्या इधर लक्ष्मी पार्वती सरस्वती रहता है क्या? तब हर चीज हम क्या काम कर रहे? बट इधर ये दोनों हस्त का बात क्या है कि देना लेना सीखने के लिए ये सबसे है। कौन देते रहेगा वो लेते रहेगा, ये चीज सीखने के लिए। दूसरा, भगवान आपका हाथों में है, आपका अंदर है, इसको देखे तो हो जाएगा। इधर आपको दिख रहे क्या फोटोस? बट आप मानता है ना, कुछ स्तोत्र भी है, वो पढ़कर ऐसा ऐसा रखकर ऐसा भगवान, मतलब ऐसा, मतलब क्या, आंख बंद कर अंदर रहने वाला भगवान को एक नमस्कार रखकर सो जाएगा। तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। ये कर में क्या है? सब भगवान लोग है, मतलब हमारा अंदर सब चीज है। इसको देखो बोल दिया, बट हम क्या इधर भी उधर देख रहे, इधर रहकर उधर देखते रह रहे, बाहर। आंख इधर है, मन बाहर है। समझ गए? ये अंदर ही रहने वाले चीज को पकड़ना है तो कुछ चीज छोड़ना पड़ेगा। अज्ञानता को छोड़ना पड़ेगा, मूर्खता को छोड़ना पड़ेगा, व्हाट आर अननेसेसरी सब चीज छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ने के लिए विचार करना पड़ेगा। यू शुड ब्रिंग बुद्धि एंड ज्ञान, ये दोनों को लाकर साथ रखो। दो आर्मी पर्सन्स जैसा दो गन दे दो वो दोनों को। जैसा मेरा बुद्धि अलग अलग हो गया, शूट करो, ऑर्डर्स दे दो उनको, शूट एट साइट ऑर्डर्स। कब कब में रॉन्ग हो रही है, गलत हो रही है, इमीडिएटली शूट। शूट मतलब क्या? अंदर से एक आवाज आता है, ए इतना क्लासेस सुना, इतना बुक्स पढ़ा, तो भी फिर स्टॉप बटन, स्टॉप, शूट एट साइट। जब देखा हो तुरंत हमारे पास एक झटका आना है, मैं क्या है, ऐसा बदलना चाहिए, छोड़ना चाहिए। देन वील गो टू द नेक्स्ट स्टेप। मुमुक्षु को, ये साधक को इतना अवेयरनेस रहना है, ये बंध राहित्य स्थिति को पाना है। हाउ टू लिबरेट, हाउ टू बिकम फ्री ऑफ माई सेल्फ। मैं खुद कैसा फ्री होना है सीखो। बाहर से अरे बच्चों में आप कब जाएगा, अरे पतिदेव, अरे वाइफ कि आप ये सब पकड़ रहे मुझको, ये बाहर का चीज सब चीज पकड़ रहे, ये सब बकवास बात है, ये सब नहीं है एक्चुअली। हम क्या कर रहे हैं, एक वृक्ष को पकड़कर ये मुझको छोड़ता नहीं, ये मुझको छोड़ता नहीं। कौन छोड़ेगा? हम छोड़ना है। अरे वो क्यों छोड़ेगा? वो वही स्थिति पर है। कैसा पकड़ गया? मेंटली पकड़ गया हम सब चीज को। सो माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू लीव द थिंग्स। ओके ओके, व्हाट से एक बार हमें ओके फ्रेंड्स, फिर इसका कंटिन्यूटी है, सो कल मैं बताऊंगी। एक्चुअली एक पॉइंट को ज्यादा
नोटिस करो कैसा छोड़ना अंदर से। इसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा 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 जरूरी है, इतना आसान नहीं, मैं बहुत बता दिया, बस बहुत प्रैक्टिस करना, बहुत अवेयरनेस के साथ रहना, बहुत ओके? कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत कोशिश करना है। क्या इतना इजी है क्या? छोटा मोटा एग्जाम्स ही पार करने के लिए टेस्ट है, फिर फाइनल टेस्ट में पास करने के लिए सो मेनी बुक्स पढ़ाई करना। एलकेजी 10 पेजेस बुक पढ़ाई के तो हो जाएगा, पीजी वाला बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ना है, और हमारा मास्टर डिग्री का मास्टर डिग्री, इसलिए स्वाध्याय कितना बुक्स बहुत पढ़ अच्छा सकता है। है तो पढ़ो, कितना लेक्चर्स सुन सकता है तो सुनो, बट कितना विचार बदल सकता है, रस्सी आप ही खोलना पड़ेगा, नहीं ये तो नाव उधर उधर ही चलता है। कितना बार राम राम 1 करोड़ समय लिखो, कितना यज्ञ करो, याग करो, होम करो, ये अंतःकरण का शुद्धि नहीं कर पा रही है, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम। आप वो करने से भी कुछ नहीं आता, बिना करने से भी कुछ नहीं, सब एक ही रहता है। इसलिए अंतःकरण शुद्धि, पात्र किस पात्र में सब कर रहे, वो पात्र ठीक नहीं है तो उसमें दूध डालो, अमृत डालो, व्हाट इज इट्स वेस्ट, है ना? क्लीन यूर इनर, वो क्लीन करने के लिए क्या करना है, हर एक क्लास में हम बताते जा रहे हैं। आपको फिर डाउट आ गया तो फिर पहले से देखो सब चीज, हाँ, यही कर इसके रहा हूँ। अलावा मैं फिर रिपीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि नहीं इतना यही है, पॉइंट्स हम सीखते जा रही है। यही कर रहे गो हैं। बैक एंड चेक। ओके फ्रेंड्स, लेट अस क्लोज दिस सेक्शन, और कुछ भी Thank डाउट्स you. है तो बता दो। थैंक Thank यू you. वेरी मच। यस Thank- मैम। जोशी सर, एनी डाउट्स? You are God, ma'am. हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था, एक तरफ तो हम कहते हैं कि वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम कर्ता नहीं है, कर्तापन का भाव हमें नहीं होना चाहिए। आर दिस टू नॉट कंट्रारी स्टेटमेंट? नो सर, बोथ आर वन ओनली। कैसे समझाया? कैसा है मैं बताऊंगी। हम कर्ता नहीं, क्रिया भी नहीं, वी आर नॉट। इधर इधर कौन, आदि शंकराचार्य विल से वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, you are not subject, you are not seeker, and you are not object, you are all। ये चीज क्रिएटर कब होगा, जब ये चीज समझ गए तो he will become the creator। कर्ता कर्म क्रिया मैं ही हूँ, सर्वांतर्य में मैं ही हूँ। what I am doing is what I am giving, the person taking also is me। अहम ब्रह्मास्मि सर्वदम कल्विदम ब्रह्म तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, ये हर एक चीज ब्रह्म पदार्थ है। किस व्यक्ति ने सीखा है, he will become the creator। वो स्थिति पाने के लिए we are going into, we are the creator। मैं अज्ञान में हूँ, अज्ञान का चीज बाहर आ रही है, मैं ज्ञान में हूँ, ज्ञान का चीज बाहर आ रही है। इफ आई नो, मैं जब मालूम है मैं ही सब कुछ, मैं एक भगवान हूं, तब मेरा एक्टिविटी भगवान का जैसा होकर वैसा क्रिएशन बाहर आ जाएगा। समझ गए? मैं किस तरीका का मैं कुछ बदलता हूँ, उस तरीका का आउटपुट आ जाएगा। पहला मेरा क्रिएशन क्या है, गलतियों को कर रहे वही चीज, बट मुझको मालूम भी नहीं मैं एक क्रिएटर हूँ। अज्ञानता, ज्ञान में आ गया, कोई बता दिया अरे बाबा यू आर द क्रिएटर, आप ही भगवान है, उस शक्ति आपको है, आप चीज बदल दो। तब बदलने के लिए इतना क्लासेस ले रही है। ये बदलना इंसान टू गॉड, ये बीच का रास्ता बहुत बड़ा है। हर एक चीज को, हर एक पेपर को, हर एक लेटर को देखकर टिक कर रहे हमारा राइटिंग्स को। तब क्या हो रही है, धीरे 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 ये क्रिएटिविटी बदलते जा रही है। वन डे यू विल बिकम, ऑलरेडी वी आर बिकमिंग दैट क्रिएटर स्थिति। अब दोनों अलग किधर, दोनों में एक ही है। आपको क्लियर हुआ सर? नहीं मैडम, नहीं हुआ क्लियर। मेरा ये है कि हमको कर्ता, गीता में भी
कहा है कि कर्तापन का भाव हमारे में नहीं होना चाहिए, हाँ, है ना? ओके, हाँ, ककृत भाव, हाँ, या कर्तापन का भाव, हम करने वाले हैं ऐसा हमारे को एज्यूम नहीं करना चाहिए। दिस इज, और मैं कल न्यू एनर्जी की बुक पढ़ रहा था, उसमें भी यही पॉइंट आया था कि आपको कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए। यस यस यस, ऑन द कंट्रारी हम कहते हैं कि वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। या यस सर, इधर एक देखो, तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम करता ही नहीं है, करने वाला कोई और है, और एक तरफ हम कह रहे हैं नहीं, करने वाला और नहीं, तो ककृत भाव नहीं चाहिए, मतलब करने वाला आप ही है, बट व्हेन यू आर टेकिंग द रिजल्ट, लीव इट टू somebody, God, that somebody also, ईश्वर को छोड़ दो, आप ही कर रहे, बट रिजल्ट लेने का समय वो अच्छा हो कुछ भी हो, आई एम, मतलब एक चीज मैं बताऊंगी, పలికెడి రామ భక్తుడట, పలికించెడివాడు రామచంద్రుడట, నా పలుకులు దోషం బల్లంచక నన్ను బ్రోవర रामचंद्र, दिट इज वन ग्रेट सेंट का वर्ड्स है, मतलब मैं कौन बोल रहे, ये राम का भक्त हूँ, बट मेरे मुंह से किस बात आ रही है, किसका दिया हुआ बात, उनका दिया हुआ बात मेरा नहीं है। उस स्थिति पर पहुंचने के बाद जी, मेरा दोष में अभी गलत किधर से आएगा, क्योंकि मैं बात ही नहीं कर रहे, ये सब जी, मेरा, मतलब ये अहंकार को छोड़ दिया तो तब वो ककृत भाव आ जाएगा, मतलब एवरीथिंग इज गॉड, व्हाट इज हैपनिंग, बट जब तक सुवर्ण कर रहे ये भाव है तब तक ये नहीं होगा। व्हाट यू आर सेइंग दैट बोथ आर ऑपोजिट हो गया, जब ये अहंकार को छोड़कर मैं और वो नहीं है, ये मैं जी। सिर्फ उनका है, तब ये एक हो गया, देन इट जी। केम्स टू वन पॉइंट। ओके, सो गीता में भी लिखा है ना कि जो कुछ भी आप कर्म करते हैं वो पूरा मुझको समर्पित कर दो, कृष्ण वो जी ने लिखा इसलिए है। तो वी विल वन डे तो डिस्कस अबाउट दैट, हमको हाँ, 2 दिन के बाद वो भी सामने आ जाएगा, वी विल गो समवॉट डीपर। ओके, हम पूजा भी करते हैं तो आखिरी में बोलते हैं ओम तत्सत करके और पूरा समर्पित कर देते हैं भगवान को। हाँ हाँ, तो ओके फ्रेंड्स, हम एक्चुअली 2 करता मिनट्स रहे लेफ्ट नहीं। है, दूसरा क्लास शुरू होने वाला है, जी। सो ओके, हमारे पास टाइम भी नहीं रह रहे, इसलिए ज्यादा साधना करो, फिर देखो एक बार, फिर पॉइंट्स को ले लो, गेट रेडी टू टुमारो। ओके, ओके मैडम, थैंक यू थैंक फ्रेंड्स, यू, ma'am. थैंक यू Thank मैडम, you. Thank you very much. Love you all. यस, Love you. Thank you, ma'am. Thank you so much.